Hello and welcome to the BioBeat by Henny, your place to study smart, not hard. Today we will be covering the structure of eukaryotic cell. In previous lecture we understood the structure of prokaryotic cell, how a prokaryotic cell is very simple when it comes to structure, but in comparison to eukaryotic cell, it is very complex in function. Now we will be starting with eukaryotic cell, the structure of eukaryotic cell. First of all, when I talk about eukaryotic cell, what is it that differentiates a prokaryotic and eukaryotic cell? So, when I talk about prokaryotic and eukaryotic cell, I say one statement that the prokaryotic cells do not have well-defined nucleus, but eukaryotic cells have well-defined nucleus. The prokaryotes do not have membrane-bound organelles, whereas eukaryotes have membrane-bound organelles. So let's write it down. We are starting with eukaryotic cells. So the very first thing that comes in our mind when we talk about eukaryotic cell is these cells have well-defined nucleus and they have membrane-bound organelles. Membrane-bound organelles. What are the examples of eukaryotic cell? See, the examples, we have 5 kingdoms, right? Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The only single kingdom, Monera, consists of prokaryotes. Rest all the kingdoms have eukaryotic organisms in them, right? So the example of eukaryotic cell will be all the organisms included under the kingdoms of Protista, Fungi, Plantae and Animalia, right? So all the organisms from Protista to Animalia have eukaryotic cells. They are made up of eukaryotic cells. Now, these eukaryotic cells have complex locomotory and cytoskeleton structures. Complex locomotory. See, when we studied prokaryotic cell, we understood that these prokaryotic cells, some of these prokaryotic cells also have flagella. The motile bacteria have flagella, right? But the flagella structure is very simple there. But when it comes to eukaryotic cells, they have complex locomotory structure. They will also have flagella and cilia, but the structure is very much complex than what is there in prokaryotes. Okay, then they have cytoskeleton structure. Now what are these cytoskeleton structures? We will understand in further lectures. Right now you just remember that in eukaryotes the eukaryotic cells have complex locomotory and cytoskeleton structures. Now when we talk about eukaryotic cells, we generally talk about two major cells, animal cell and plant cell. Okay, these two cells are studied widely, and in NCERT also these two cells are mentioned, so we need to understand these two cells. Now when I start with animal and plant cells, there are some difference between animal and plant cells. See, plant cells have a cell wall as the outermost layer, which is absent in animal cell. In plant cell there is a huge central vacuole, large central vacuole, but in animal cell there are no vacuoles. Okay, plant cells also have these plastids. They also have these plastids in them, but animal cells lack plastids.
But when it comes to centrosome, animal cells have centrosome, but plant cells lack centrosome. What are centrosomes? Centrosomes are the organelles. These are non-membrane bound organelles which help in cell division. Okay, so we differentiate between animal and plant cell. See, animal cells have a cell wall. No, they do not have cell wall. But does plant cell have? Yes, they do have. Then central vacuole. Animal cells lack central vacuole, but plant cells have central vacuole. Then they have plastids. By plastids, we can also see chloroplast. Chloroplast is a type of plastid. Okay, so do animals have plastid? No, they do not have plastid. They do not have chloroplast, because chloroplast is for what? Chloroplast contains chlorophyll, which is the pigment responsible for photosynthesis, which is necessary for photosynthesis. But do animals require this chlorophyll? Do they require this pigment for photosynthesis? No. So they do not perform photosynthesis, right? So there is no need of chlorophyll or chloroplast. So they do not have plastids, but plant cells have plastid. Then animal cells have centrosome, something called centrosome, but plant cells do not have. These centrosomes are non-membrane bound organelles which are present in animal cells during cell division. They help in cell division. Okay, now these are non-membrane bound organelles, centrosome, but they are not present in plant cell. But they are not present in prokaryotes. Okay, they are not present in prokaryotes. We know that they are not present in plant cell, but they are not present in prokaryotes as well. These centrosomes are non-membrane bound organelles, and we talked that prokaryotes do not have membrane bound organelles. Okay, so ribosome is a non-membrane bound organelle, and it is present in both prokaryotes and eukaryotes. But this centrosome is also non-membrane bound organelle, but it is only present in eukaryotes, and to be very specific, only present in animal cell. Okay, that's clear. Now we will start with the structures of eukaryotic cell. Now everyone knows the overview of eukaryotic cell, the overview of structure of eukaryotic cell, right? We know that these eukaryotic cells will have Golgi complex, mitochondria, endoplasmic reticulum, all the membrane bound organelles. We will understand the structure of each of these organelles separately. I will not draw the structure of a eukaryotic cell and show all the organelles there. Rather, we will study each and every organelle separately. So first of all, we will start with cell membrane. It's not an organelle, but the cell membrane is the most important part of a cell. Like if I want to say that anything that is the universal in both prokaryotes and eukaryotes, in all type of cells, like if I want to say that anything which is universal in a cell, like all the cells will possess that thing. What are those things that are universal in all type of cells? These are cell membrane. Like if I want to draw a cell, मतलब एकदम फुद्दू सा भी सेल ड्रॉ करूंगी, उसको एक सर्कल तो ड्रॉ करूंगी, तो जो सर्कल की बाउंड्री है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन. ओके, then another thing that is universal, that is found in all the cells, is cytoplasm. And one more thing that is found in all cells is ribosomes. Now ribosomes may differ according to prokaryotes and eukaryotes. In prokaryotes it can be 70S, and in eukaryotes it will be 80S ribosomes, right?
but ribosomes are the non-membrane bound organelles found in both prokaryotes and eukaryotes, right? So first we will understand the structure of cell membrane, and this cell membrane, the structure of cell membrane is same in all cells, whether it is prokaryote or eukaryote, it is same in all the cells. Okay, so we'll be starting with plasma membrane. This plasma membrane is a bilipid layer. Okay, it is a bilipid layer. मतलब देखो, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये हमने मेम्ब्रेन बनाई, अभी ये हमको सॉरी, ये हमको सिर्फ एक लाइन ऐसे दिख रही है ना, ऐसा नहीं होता, ये सिंगल लेयर नहीं होती, ये डबल लेयर होती है, ये बाइलिपिड लेयर होती है, 2 लेयर्स होते हैं इसके। ओके, और अगर मैं इतने पार्ट को जूम इन करके दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, देखो कुछ ऐसी सी है, ठीक है, यहाँ पे सपोज मान लो ये पूरा सेल है। ओके, इतना पोर्शन मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ जिसमें कि ये लिपिड की बाई लेयर है, सॉरी नॉट बाइलिपिड लेयर, आई एम वेरी सॉरी, लिपिड बाई लेयर, आई एम वेरी सॉरी। ओके, इट इज़ अ लिपिड बाई लेयर। कैसे होगा, ये लिपिड बाई लेयर जो होता है ये जनरली किसका बना हुआ था, जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कौन सा लिपिड जनरली पाया जाता है, मोस्टली अबंडेंट कौन सा पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ओके, तो ये कैसी बनी होती है ना, इसके पास एक हेड होता है और एक टेल होती है। कैसे होता है देखो, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या बना दिया मैंने, सी just now I said that this phospholipid has a polar head and a non-polar tail. ये क्या है, देखो हमारा जो सेल है इसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, राइट, एंड साइटोप्लाज्म इज व्हाट, इट इज वाटर विथ other solutes in it, right, it is water with solutes in it. Okay, so cytoplasm भरा हुआ है, और सेल के बाहर क्या है, सेल के बाहर भी तो फ्लूइड है, और फ्लूइड में मेजर क्या है, वाटर, राइट। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, लिपिड क्या है, लिपिड जो है ना ये हाइड्रोफोबिक होता है, राइट, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को हेट करने वाला। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या है, ये फॉस्फो और लिपिड से बना है, एक फॉस्फेट ग्रुप है और एक लिपिड है, जिसमें लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक है। ये मैंने बनाया ना अभी ऐसा। तो ये जो हेड है ये क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, पर ये जो टेल है ये है आपकी लिपिड वाली मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो लिपिड है ये क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक होगा, यानी पानी से दूर भागेगा। तो आप ये समझो जैसे कि ये दो, अभी ये सेल है ना, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे फ्लूइड है। तो हेड बाहर की साइड है, मतलब फ्लूइड की साइड है, फ्लूइड की साइड। और हेड कैसा था, हेड इज हाइड्रोफिलिक, फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है तो हाइड्रोफिलिक, टेल है तो हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे फ्लूइड के पास भी मैंने हेड लगा दिया, ओके। और यहाँ साइटोप्लाज्म जो भी पोलर है, साइटोप्लाज्म भी पोलर है इन नेचर, तो यहाँ पे भी मैंने हेड लगा दिया। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इनको तो पानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट, दे आर हाइड्रोफिलिक, दे आर वाटर लविंग, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लोग आराम से रह रहे। और ये जो टेल है हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, इनको वाटर से नफरत है,
ओके, तो इनको हमने अंदर रख दिया, तो वो ऐसे 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 छुप के रह रहे। यहाँ पे ऊपर हाइड्रोफिलिक हेड और नीचे हाइड्रोफिलिक हेड, और बीच में दोनों की हाइड्रोफोबिक टेल ऐसे बच के रह रही है, यानी साइटोप्लाज्म और फ्लूइड दोनों से बच के रह रही है। ओके, तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ फॉस्फोलिपिड ही नहीं होता, इसके अंदर प्रोटीन्स भी मिलते हैं। ओके, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें। ओके, प्रोटीन्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, थोड़ा बहुत ग्लाइकोजन भी मिलता है। ओके, तो एक स्टेटमेंट पास करी थी जिसमें कहा था कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ प्रोटीन बहुत कम नहीं मिलता। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन और लिपिड दोनों मिला करके बनता है। ओके, और एक स्टेटमेंट बोली थी जिसमें बोला था कि जो लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेटमेंट बोला कि जो लिपिड है वो पूरा सी है, और जो प्रोटीन्स है वो उसमें आइसबर्ग्स हैं। ठीक है, पूरे समुंदर में पानी में तैर रहे हैं ये आपके आइसबर्ग्स। ठीक है, ऐसा एक स्टेटमेंट था। फिर कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोजन जो होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जनरली जब हम लोग देखें तो लैब में जो स्टडी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो किस पे होती है? वो होती है ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स पे। क्यों? ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, राइट? अभी देखो, तुम ही समझो, मैंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है। ओके, या सब ऑर्गेनिजम्स में सेम है, पर सब ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगी। ठीक है, तो कंपोजिशन डिफर करेगा, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन डिफर करेगा, पर जो बेसिक जो ढांचा होगा जिससे बना होगा वो सेम होगा। ओके, तो तुम ही समझो एरिथ्रोसाइट्स पे क्यों स्टडी होती है? जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सिर्फ एरिथ्रोसाइट्स ही क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, अब तुम ही समझो कोई भी एक ऐसा सेल ले लिया जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सारे ऑर्गेनेलीज हैं, सब है। अब उसकी मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करनी है उस सेल की, तो उस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसका तो एक अलग से कंपोजिशन होगा कि इतने परसेंट प्रोटीन, इतने परसेंट लिपिड, है ना। फिर उसके पास अंदर से जो मेम्ब्रेन्स होंगी उसका भी अलग कंपोजिशन होगा, उसके पास जो ऑर्गेनेलीज है उसकी मेम्ब्रेन का कंपोजिशन अलग होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन अलग होगा, राइट। तो ये सारी क्या करेगी? ये कंटामिनेशन करा देगी। जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, एक सेल की मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसकी कंपोजिशन को वो कंटामिनेट कर देगी और हमें रियल जो उसकी कंपोजिशन है वो नहीं पता पड़ पाएगी, है ना। और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ह्यूमन एरिथ्रोसाइट में 52% क्या है? 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। ओके, सो ह्यूमन आरबीसी हैज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ओके, हाँ, तो यहाँ तक हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द साइंटिस्ट नेम्ड सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन दोनों ने मिलकर एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है? ये मॉडल बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर की है। ये मॉडल समझाता है हमें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है फ्लूइड नेचर, इसका नेचर है क्वासी फ्लूइड नेचर। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है क्वासी फ्लूइड नेचर। और ये क्यों हेल्पफुल है, क्यों ज़रूरी है? तो ये बोलता है, ये मॉडल समझाता है कि ये क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से जो प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, उनकी लेटरल मूवमेंट कराना बहुत इजी हो जाएगा। सपोज कि
एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मैं उसका प्रोटीन हूँ, ठीक है, मैं उसकी प्रोटीन हूँ। अभी लेटरल मूवमेंट करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना प्रोटीन्स की लेटरल मूवमेंट होती है। समझो कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही रिजिड होती, सॉलिड होती, तो क्या प्रोटीन मूव कर पाता? मैं मूव कर पाती यहाँ से यहाँ? नहीं, यहाँ से भी एकदम ऐसे कड़क है, यहाँ से भी एकदम कड़क है, तो मैं मूव ही नहीं कर पाती। लेकिन अगर क्वासी फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो मैं आसानी से ऐसे लेटरल मूवमेंट कर सकती हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर हेल्प करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन के लिए, ठीक है। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। अब समझो कि जो ये फ्लूइड नेचर है, इसके फर्दर एडवांटेज क्या है, इसके फर्दर यूजेस क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो ये जो फ्लूइड नेचर है ना, इससे क्या होता है, ये जो फ्लूइड नेचर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ। सेल के ग्रोथ के लिए इसका फ्लूइड नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सेल का ग्रोथ कराता है, ठीक है। फिर सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, फिर सिक्रीशन में हेल्प करता है, ओके। So the fluid nature is very very important in term of cell growth, in context of cell growth, cell division, secretion, okay. Then we talk about the permeability of this plasma membrane. The plasma membrane is semi-permeable in nature. It is semi-permeable. मतलब ये किसी मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने देगी, किसी को नहीं होने देगी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव सी दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं एक ऐसे बना देती हूँ। तो ये हो गया आपका पोलर हेड, ये हो गई नॉन पोलर टेल, ये भी हो गई नॉन पोलर, और ये वापस से हो गया पोलर हेड, ओके। अंडरस्टैंड कि यहाँ से भी मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं और यहाँ से भी मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं। तो हम समझ रहे हो, ये सेल के बाहर वाली साइड है और ये साइटोप्लाज्म वाली साइड है, ओके। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स मतलब सेल के अंदर से भी बाहर जाने की ट्राई कर सकते हैं और सेल के बाहर से अंदर आने की ट्राई कर सकते हैं, ओके। पर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ही लिमिटेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने से पास होने के लिए, बिकॉज इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर। अब समझो कि देखो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये बहुत इजीली पास हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्यों? क्योंकि तुम ही देखो ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट क्या है? नॉन पोलर टेल। ये हेड तो थोड़ा थोड़ा है, ये तो आसानी से मतलब थोड़ा सा करके निकल जाएगा। फिर तो नॉन पोलर टेल ही है जो कि हमारे इससे नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर टेल दोनों कंपैटिबल है एक दूसरे के, आसानी से पास कर लेगा, ठीक है। वहीं पे अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है वो तो पास नहीं कर पाएगा। चलो पोलर हेड जो है वो कंपैटिबल है पोलर मॉलिक्यूल के, लेकिन फिर इतना पूरा जो लंबा रास्ता है नॉन पोलर टेल का वो कैसे क्रॉस करेगा? वहीं पे अटक जाएगा, है ना। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है सी कौन कौन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर सकता है, जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए जो मैंने अभी समझाया, देन सर्टेन न्यूट्रल सॉल्यूट्स, ओके, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो हैं थोड़े बहुत वो पास कर जाएंगे। फिर आपका वाटर जो है वो भी पास कर जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म और फ्लूइड्स दोनों ही पानी पानी है, तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इतना, हाँ, जब भी वाटर पास करता है मतलब कि डिफ्यूजन हो रहा है वाटर का,
through plasma membrane. It is known as osmosis. ओके और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, इनको पास करने में कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंपैटिबल हैं पास होने के। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंपैटिबल है नॉन पोलर टेल से और इजीली पास कर जाएगा, तो इसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं लगी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका ट्रांसपोर्ट होता है पैसिवली, तो इसको हमने बोल दिया पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहीं पे मैं बात करूँ पोलर मॉलिक्यूल्स की, जो मैंने समझाया अभी कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास नहीं कर पाएंगे। चलो पोलर मॉलिक्यूल्स ने पोलर हेड क्रॉस कर लिया, फिर इतना नॉन पोलर टेल कैसे क्रॉस करेगा, है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली पास नहीं कर पाएंगे मेम्ब्रेन से, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, जो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। हमने देखा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स मिलते हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन्स काम करते हैं चैनल का, जिसके अंदर से पास होके जाएंगे, ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है पास होने के लिए, ओके। फिर थोड़े बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, यानी कि सपोज कि साइटोप्लाज्म में किसी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन, मान लो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द आउटर फ्लूइड्स, पर अभी कुछ आयंस जो हैं फ्लूइड से साइटोप्लाज्म में आना चाहते हैं, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ। कैसे? साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसकी आयंस की, और फ्लूइड्स में बहुत कम है, फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती भेज रहे हैं साइटोप्लाज्म में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आता है ना, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एटीपी की यूज़ होगी, उसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है कि तू जा। तुम ही मान लो कि कोई एक बच्चा है जिसको कॉलेज जाना है और किसी को कॉलेज नहीं जाना। पेरेंट्स तो दोनों चाहते हैं कि बच्चे जाएं कॉलेज, है ना, पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे, है ना। तो कोई बच्चा है जिसको जाना है, तो वो तो उसके तो मतलब मर्जी से जा रहा है, उसको तो जाना ही है। लेकिन कोई एक बच्चा है जिसको नहीं जाना, पर पेरेंट्स धक्के मार के भेज रहे हैं, तो पेरेंट्स की तो एनर्जी खर्च हुई। वैसे ही तो हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पे फ्लूइड में कम है, फिर भी हम फ्लूइड से आयंस को धकेल के भेज रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को आप लोग समझ लो विल कैसी होती है कि अगेंस्ट द विल, मैं समझ रही हूँ, विल वो वाला नहीं, लॉयर वाला विल नहीं, विल उसकी मर्जी के खिलाफ, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को आप एक विल की तरह समझ लो कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो किसकी तरफ जाएगा, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। अपनी मर्जी, उसकी मर्जी कहाँ पे होगी, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाना। पर अगर उसको कम से ज़्यादा की तरफ तो आना नहीं है ना, पर उसको धक्के मार के कम से ज़्यादा की तरफ भेजेंगे तो उसमें एनर्जी की यूज़ होगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी, इसलिए उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कुछ आयंस होते हैं जिनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। तो हमने अभी देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर ऑस्मोसिस देखा मेम्ब्रेन के अंदर। अभी हमने जब ये देखा था पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये प्रोटीन कैसे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से बना है, साथ ही साथ उसके अंदर प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोजन है ना। तो ये प्रोटीन कैसा होगा? सपोज कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर इसके अंदर अभी प्रोटीन जो है ना, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अरेंजमेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। अगर वो पूरा का पूरा ऐसे धसा हुआ पड़ा है, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ पड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। लेकिन ऐसे बाहर पड़ा है, ठीक है, या थोड़ा सा धसा हुआ है,
इसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो जो ये बाहर बाहर पड़े हैं, ठीक है, ये बाहर बाहर जो पड़े हैं, पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन को धंस नहीं डाला है, उनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और पूरा धंस के पड़ा है उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्लासिफाई कैसे हुआ है ऐसे? ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना आसानी से उस प्रोटीन को मेम्ब्रेन से निकाल सकते हैं, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन पड़ी है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है बाहर बाहर है, आसानी से निकाल देंगे, पर इंट्रिंसिक प्रोटीन पूरा धंसा हुआ है, दोनों मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेम्ब्रेन में धंसा है, दोनों की दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया है ना, तो उसको निकालना बहुत ही टफ होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो बाहर बाहर पड़ा है उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो हियर वी कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा अभी मैं सेल वॉल के बारे में समझा दूंगी, क्योंकि सेल वॉल बहुत ही छोटा टॉपिक है अभी। उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ ऑल द ऑर्गेनेलीज। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर। ये आपके प्लांट्स में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमलिया। प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बाकी फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया एज वेल एज बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलती है। तो सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन की बाहर की लेयर है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये रिजिड होती है, बहुत ही ऐसे हार्ड होती है, और ये सपोर्ट भी देती है, शेप को मेंटेन करने का काम करती है। ये सारे फंक्शंस उसके हमें पता है क्या क्या है, एक बार लिख देते हैं। जैसे कि ये रिजिड है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है ना। फिर क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है बर्स्टिंग को, सेल के, प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ सेल। राइट, तो ये सारे सेल वॉल के थोड़े बहुत ऐसे कॉमन से फंक्शन है जो हमें पता है। अभी हमको देखना है कि सेल वॉल किस किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और उस ऑर्गेनिज्म में उसका कंपोजिशन क्या है, किससे बनी है वो सेल वॉल। ऐसा नहीं है, देखो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसकी कंपोजिशन सेम है, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेम कंपोजिशन से बनी होगी, सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होगी। ठीक है, सिर्फ उसका परसेंटेज डिफर करेगा कि लिपिड परसेंटेज अलग है, इसमें प्रोटीन परसेंटेज अलग है, पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो सेम है। बट व्हेन इट कम्स टू सेल वॉल हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मॉलिक्यूल्स से बनी होती है। राइट, तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया में देखते हैं कि बैक्टीरिया में किसकी बनी है। बैक्टीरिया के अंदर भी आप मोनेरा किंगडम में देखोगे आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। जो आर्कीबैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया, बहुत पहले से चले आ रहे हैं बैक्टीरिया, और आर्कीबैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया हैं जो हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो वो क्यों सर्वाइव करते हैं, और जो यूबैक्टीरिया है वो इतने हार्श कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते, वो क्यों? तो जो आर्कीबैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल का कंपोजिशन वेरी करता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, एज कम्पेयर टू यूबैक्टीरिया। ओके, तो जो आर्कीबैक्टीरिया होता है जनरली बैक्टीरिया जो है एक आर्कीबैक्टीरिया है, एक यूबैक्टीरिया है। यूबैक्टीरिया के बारे में तो सबको पता होगा, मतलब जनरली आपने हर जगह सुना होगा कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। ठीक है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन असल में यूबैक्टीरिया में होता है। यूबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्कीबैक्टीरिया की, तो ये हार्श कंडीशंस में सर्वाइव इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो डिफर करती है यूबैक्टीरिया से। इनकी सेल वॉल बनी होती है स्यूडोम्यूरिन से।
स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है ये सेल वॉल आर्कीबैक्टीरिया की, पर यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन का ही दूसरा नाम है म्यूरिन। ठीक है, ओके। तो बैक्टीरिया के अंदर स्यूडोम्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है फंजाई। फंजाई है, उसके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो होती है काइटिन की। ये जितने भी सेल वॉल के जो कंपोजिशन की बात हो रही है कि इसमें काइटिन की बनी है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में। द चैप्टर वी विल स्टार्ट आफ्टर सेल। ओके, तो फंजाई के अंदर काइटिन से बनी होती है। देन हम एल्गी पे आ जाते हैं। एल्गी जो कि सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, ठीक है, उसमें किसकी बनी होती है? उसमें बनी होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और जो हायर प्लांट्स हैं उसके अंदर किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो ये आपकी सेल वॉल की कंपोजिशन है। ये आपको याद करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किसकी बनी हुई होती है। ठीक है, इतना आपको याद करना है। अब हम देख लेते हैं कि सेल वॉल जो होती है ये जो यंगर सेल्स हैं उसमें कैसी होती है, और जब सेल मैच्योर हो जाता है उसमें क्या होता है। समझो ये एक सेल है, ठीक है, इसके बाहर एक सेल वॉल है। ओके, ये क्या हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गई आपकी सेल वॉल। सपोज करो कि ये यंगर सेल है, ठीक है, तो इसमें जो सेल वॉल है वो अभी प्राइमरी सेल वॉल है। फर्दर फिर आगे जाके वो मैच्योर होगा और उसके बाद उसमें सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। ठीक है, तो अभी ये सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जो है यंगर सेल में, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये इतनी रिजिड नहीं होती, ठीक है, ये सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से ये सेल वॉल जो है ना ये प्रोमोट करती है सेल ग्रोथ को। तुम ही समझो अगर मुझे कोई ऐसे रूम में कोई बंद कर दे जो एकदम रिजिड है, एकदम पूरा जैसे दीवार है, ठीक है, रूम दीवार से बना है समझो, और कोई मुझे मेरे ही शेप के अकॉर्डिंग एक रूम में बंद कर दे, अब मैं ना यहाँ मूव कर पाऊंगी ना वहाँ। ओके, एकदम ऐसे ही खड़ी रह जाऊंगी। तो जब सेल वॉल रिजिड होगी तो सेल ग्रो कैसे करेगा। पर वहीं पे अगर कोई मुझे एकदम रबर का सेल वॉल, रबर के रूम में बंद करे, तो मैं ऐसे करूंगी तो रबर तो फ्लेक्सिबल है ना, तो वो ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। तो वैसे ही अगर सेल वॉल रिजिड नहीं है तो वो सेल ग्रोथ को प्रमोट करेगी। ठीक है, पर जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, सेल मैच्योर होगा, तब क्या होगा, यंगर सेल जो है वो सेल मैच्योर हो रहा है, तब क्या होगा, तब ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड, ये याद रखना, कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बाहर यहाँ पर दिखा देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, यहाँ पे नहीं होती। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो अंदर की साइड बनती है, यहाँ बनती है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल का बनना शुरू हो गया, और साथ ही साथ ये प्राइमरी सेल वॉल जो है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल जो है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो गई और सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और बाद में ये सेकेंडरी सेल वॉल अच्छे से बन जाएगी और प्राइमरी सेल वॉल पूरी की पूरी डिमिनिश होके
चली जाएगी। और ये सेकेंडरी सेल वॉल जो अब बनी, ये वाली सेकेंडरी सेल वॉल जो बनी वो रिजिड है, दिस इज रिजिड, और अब ये प्रिवेंट करेगी सेल के ग्रोथ को। ठीक है, अब सेल का ग्रोथ नहीं हो सकता, इसीलिए तो एक बार सेल मैच्योर हो जाए उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल आती है। मैच्योर कब होगा? जब प्रॉपर ग्रोथ हो गई है सेल की और सारे ऑर्गेनेलीज और सब आ गए हैं उसके बाद। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल है ये क्या काम करती है? ये नेबरिंग सेल्स को अटैच करने का काम करती है। ये दोनों सेल्स के बीच में, मतलब सी नेबरिंग सेल्स के साथ कांटेक्ट बना के रखती है सेल वॉल। ठीक है, और दो सेल्स के बीच में, मानो एक ये सेल है और एक ये सेल है। ठीक है, दो सेल्स के बीच में कैल्शियम पैक्टेट जमा हो जाता है। कैल्शियम पैक्टेट का एक्यूमुलेशन होता है जिससे बनता है प्लाज्मोलेमा। प्लाज्मोलेमा क्या करता है? दो सेल्स को अटैच करके रखने का काम करता है। ठीक है, ये कैल्शियम पैक्टेट जो है ये बनाता है आपका प्लाज्मोलेमा। और कई बार जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि ये सेल का पूरा जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, दोनों साइटोप्लाज्म में से स्ट्रैंड्स निकलती है जो प्लाज्मोलेमा को क्रॉस करके ऐसे मतलब एक नेटवर्क जैसा बना रही है। इसको हम बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये एक कांटेक्ट बनाती है, ये एक मतलब समझो ना खिड़की का काम करती है, दो सेल्स के बीच में खिड़की का काम करती है जहाँ से मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा और कुछ नहीं है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। ओके, सो यार दैट्स ऑल अबाउट सेल वॉल। आज हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फॉस्फोलिपिड और ये सारा, फिर हमने पढ़ा एक्टिव, पैसिव और ऑस्मोसिस, फिर हमने पढ़ा सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल के फंक्शंस देखे, फिर हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, फिर हमने देखा प्लाज्मोलेमा और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है। तो इन शॉर्ट आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पूरा कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अदर ऑर्गेनेलीज। वी विल स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनेली इन डिटेल, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनेली इन डिटेल. So if you found this lecture helpful, please do like, share and subscribe, and if you have any query, please comment down below. I'll answer to all your queries. Till then, bye and see you in the next lecture.